سارگن کو بروشش کی جو رائٹرز ہیں جتنے ہیں انہوں نے پھر بروشش کی کنسیپٹ لیا. سارگن میں سرگن والی وہ نیچے والی بالکل بھی ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ میسوپوٹیمیا کی ہسٹری آپ دیکھ لیں. ہمارے سارے ناظرین ماشاءاللہ آج کل میڈیا کا دور ہے, تو اس میں دنیا کا پہلے بادشاہ کا نام سارگن ہے. ہیروڈاٹس نے باقاعدہ یہ 3 الفاظ استعمال کیے, ان میں سے ہمیں ملی ہے یہ دردستان. اس نے درد کہا, بلکہ اس نے یہ کہا کہ دریائے سندھ کے کنارے لوگ لومڑیوں کی طرح اس کو ریت کو کھروچتے ہیں اور ادھر سے وہ سونا اکٹھا کرتے ہیں. چلاس قلعے میں چلاس کے بھائیوں نے کہا کہ بھائی ہمارے نگریوں پہ کیوں حملہ کیا مہاراجوں اور برٹشرز نے, لہٰذا جذبات میں آئے. اسی وقت چلاس کے قلعے میں 5 مارچ 1892 کو حملہ کر کے میجر ڈینیل اور کیپٹن موبلے کو قتل کر دیا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آئمن, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, پروگرام روبرو میں آج میرے مہمان ہیں محمد صالح, ضلع نگر, ہوپر سندھ کا تعلق ہے, قائد اعظم یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں اور ہسٹورین ہیں. انٹرنیشنل جو ہسٹورینس سے بھی ان کا کلوز تعلق رہا ہے, ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے. آج گلگت بلتستان کی ہسٹری کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے بات کریں گے. اوریجن کہاں سے ہوا, بہت سارے سوال ہیں پوچھنے کے لیے. ہمارے ساتھ رہیے. اور صالح صاحب بہت شکریہ. تھینک یو. ایک تو ہم نے آپ کا ایک پروگرام دیکھا پچھلے دنوں, جہاں آپ نے ایکسپلین کیا گلگت بلتستان, کچھ چیزوں کو آپ نے ایکسپلین کیا. اس پروگرام میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا, چونکہ ہمارے ناظرین کافی بڑی تعداد میں آپ کو دیکھیں گے, اور اس پروگرام کی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ بڑا فیڈ بیک آیا تھا. تو پہلے تو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جو آپ کا انٹریکشن رہا ہے مختلف ہسٹورین سے, یہ کن کن سے رہا ہے اور کب کی بات ہے؟ یہ شبیر میر صاحب, آپ کا بہت شکریہ آئمن کا, اور خاص کر حاضرین ناظرین, آپ نے بہت میری حوصلہ افزائی کی. آپ سب کا بھی شکریہ. اس پلیٹ فارم پہ آ کے یہاں پریزنٹ ہونے کا مقصد اپنی ذاتی کوئی پرومیننسی یا کوئی میرا ایسا شوق بالکل بھی نہیں ہے. شوق یہی ہے کہ نئی نسل کے ساتھ یہ سارے مل کے ہم, بے شک آج کے اس پروگرام کے ذریعے اگر ہم ایک لفظ سیکھ سکتے ہیں یا ایک لفظ آپ کے کومنٹس کے ذریعے میں اچھائی میں جا سکتا ہوں, گہرائی میں جا سکتا ہوں, دیٹ از انف فار می. تو شبیر میر صاحب بینگ, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ماؤنٹینیس ایریاز ہیں, بلکہ میرے دادا پر نانا بھی یہ اٹالینس کو ہی ہینڈل کر رہے تھے. وہ ہمارے میر آف نگر کے بڑے سیکریٹری سمجھ لو اس وقت, ان کے پاس تھے. یہاں سے کچھ مجھے شغف ملا, مواد ملے, جو پولو کے بہترین, جس نے 1911 میں دلی سے کپ جیتا, اس کا وزیر علی مدد ہے, ان کے بیٹے ہیں میرے نانا صاحب. تو ادھر سے بھی مواد ملی. بخیر بعد میں آتے آتے پھر اللہ کے فضل کرم سے دنیا کے بہترین جو ریسرچرز آئے, ایون ہارورڈ کے آئے, کیمبرج کے آئے, جن میں نام ہے مائیکل سپائس ہے, آپ کا ہائیڈلبرگ کا ڈاکٹر اسکائی ہاک ہے, اسی طرح پروفیسر جورگن وسیم ہے, جو یورپ میں فادر آف میوزیم کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد, جب ان کی چیزیں دیکھ کے ایسا ہی مجھ میں ایک جذبہ پیدا ہوا, ایک شوق پیدا ہوئی کہ بھائی ہم میری بیسک اوریجن کہاں سے ہیں. اور انشاءاللہ ابھی آپ کو بتا دیں گے کہ دنیا کو ورثہ حیرت میں ڈالا اس گلگت بلتستان نے. ادروائز اسی لیے تو یہ گریٹ گیم کا حصہ ہے. گریٹ گیم یہاں پہ پلے ہوا, بفر زون ہے, تو علاقے کے لوگ, ہر یہاں کے ہر باسی گریٹ پرسن ہے. تو تھوڑی چیزیں معلومات ہیں, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. جی ضرور. اچھا پہلے تھوڑا سا آتے ہیں تو اوریجن کی طرف, جیسے آپ نے خود بات کی, ٹریسز کیسے ہم اس کو ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ ہم گہرائی میں جا بالکل, کیونکہ ہمارے پاس ریٹن فارم میں تو کوئی ہسٹری گیپس بہت ہیں بیچ میں, کچھ کہیں پہ کوئی ٹوٹا ملے گا, پھر پتہ نہیں, پھر زبانی ہسٹری تو ہے وہ بھی ویری کرتی ہے فرام پلیس ٹو پلیس اور پرسن ٹو پرسن. تو اس کو ہم کیسے پھر اتھینٹیکیٹ کریں؟ یہ بہت ایک کمپلیکس قسم کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بہت ہی کمپلیکس قسم کا مسئلہ ہے, بلکہ جتنے بھی حاضرین ہیں آپ سب, جو اب زیادہ تر خواندہ بھی ناخواندہ حضرات بھی تاریخ سے بڑا شغف رکھتے ہیں آٹومیٹکلی.
تو شبیر میر صاحب دنیا میں ایک اصول ہے ہم سب کے لیے، یہ یہاں پہ کوئی ہسٹوریکل اینتھروپولوجیکل ورڈ استعمال ہم نہیں کریں گے کہ بھائی جس سے کمپلیکیٹڈ ہو یہ معاملے ہی، بلکہ دنیا میں 3 اصول ہے تاریخ کو کلیکشن کا. پہلا اصول ہے آپ کے پاس ریٹن کتب ہو جو کہ قدیم، جیسا کہ قدیم ترین کتابیں ہیں، سکند پرانا ہے یا دوسری کتابیں 5000 سال 3000 سال پرانی. دوسرا اس کا سب سے بڑا اصول یہ ہے آپ کے پاس سینہ بہ سینہ ایک اچھی سی ایتھینٹک ویلیڈیٹ آپ کے پاس کہانی ہو. تیسرا جو آخری جو ہسٹورین، ریسرچرز، اینتھروپولوجسٹ جتنے بھی ریلے کرتے ہیں وہ کھنڈرات پہ کرتے ہیں. تو کھنڈرات کو زیر مطالعہ لا کے اس ہسٹری کو اس بیک گراؤنڈ پہ چلے جاتے ہیں. ان کی مثال آپ دیکھ لیں دنیا میں قبل از تاریخ جو تاریخیں ہیں دنیا کی سب سے میسوپوٹیمیا ہے جو دجلہ اور فرات کے درمیان آباد ہوا تھا. میسوپوٹیمیا کا مطلب بھی ہے 2 دریاؤں کے درمیان آباد والے علاقہ. اب وہ تہذیب ہے 5100 سال پرانی جن کے اوپر دنیا کے پورے لوگ اس پہ فوکس کر رہے ہیں. وہاں سے کتنے اور کن کن لوگوں نے کیسے، اور پہیا جیسا کہ ان کا بابل کی وادیاں اور یہ ساری چیزیں وہاں سے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ پہلی جو سویلائز تہذیب دنیا میں ابھی مانی جاتی ہے. وہاں پہ ایک اپنے گلگت کا بھی میں ٹچ کروں، بہت سارے کتب میں میرا یہ تشفی نہیں ہو سکا. اب گلگت کو کسی نے کہا پرانے زمانے میں گلیت کہتے ہیں، کسی نے کہا گری گرت کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا قدیم نام سارگن تھا. اب دیکھ لیں سارگن کو بروشش کی جو رائٹرز ہیں جتنے ہیں انہوں نے پھر بروشش کی کنسیپٹ لیا. سارگن میں سرگن والی وہ نیچے والی بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ میسوپوٹیمیا کی ہسٹری آپ دیکھ لیں. ہمارے سارے ناظرین ماشاءاللہ آج کل میڈیا کا دور ہے، تو اس میں دنیا کا پہلے بادشاہ کا نام سارگن ہے. کھل کے لکھا ہے، صاف ستھرا، کوئی اس میں کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے. سارگن کھل کے لکھا ہے اس میں. کہنے کا مقصد اگر یہاں پہ سارگن تھا، سارگن نام آیا ہے تو لازمی طور پہ جیسا البیرونی آئے، سکندر اعظم آئے کوہ نمک تک. اب اسی طرح تاریخی اوریجن یہاں پہ گلگت بلتستان کی آپ نے ٹچ کی کہ عموماً زیادہ تر کتب میں ہیروڈاٹس کا نام لیا ہے. ہیروڈاٹس، واٹ از دا ہیروڈاٹ؟ ہی از دا فادر آف دا ہسٹری آف دا ورلڈ. ہیروڈاٹس گلگت بلتستان تک بالکل بھی نہیں آئے. وہ کشمیر اور استور تک تقریباً ان کی ایکسس ہو چکی ہے 224 قبل مسیح. ان کے مطابق ابھی شبیر میر صاحب آپ بھی تاریخی کتب وغیرہ آپ دیکھتے رہے ہیں تو دردستان کہتے ہیں. دردستان، واٹ از میننگ آف دردستان؟ فلی کنسیپچولی وہ نہیں لکھا ہے یہاں کی جو کتب میں ہے. دردستان سب سے پہلے ہیروڈاٹس نے نام لیا ہے اس پورے علاقے کو، چترال سے لے کے یاسین سے لے کے یہاں سے لے کے آگے یرقند اور اوز علاقے کا نام اس نے. بلکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے روم، ہمارے جو طب کے بڑے بڑے ڈاکٹر پروفیسر بھی اس کو شاید دیکھتے ہوں گے کہ لاطینک اور گریک ورڈ انتہائی مشکل ترین الفاظ ہوتے ہیں. ان کے ایک لفظ کے اندر بلکہ ایک حرف کے اندر ایک معنی ہوتا ہے، ایک ڈکشنری ہوتی ہے. اس کے حساب سے ہیروڈاٹس نے جب کشمیر تک آئے، استور تک آئے، اس زمانے میں یہ بھی ایتھینٹک نہیں ہے کہ کب اور کس دن کب کہاں پہ پہنچے، لیکن اس کی اپنی کتب میں یہاں پہ 3 قبیلوں کا اس نے ذکر کیا ہے. جیسا کہ یونانی، وہ ان کے اپنی لینگویج کے حساب سے پاکتیا کہا ہے. یہاں کے درد، یہاں کے قبیلوں کے بارے میں ایک درد لکھا، تو بعد میں لیٹران نے اس کو دردستان بنایا. پکتیا لکھا ہے اس میں، تو اس کو پختونخوا کے قبیلوں سے ظاہر کر دیا. اسی طرح کیسپروس لکھا ہے، کیسپروس، ہم تو یونان کے نہیں ہیں، زبان تو نہیں آتی ہے. کیسپروس لکھا تو پھر انہوں نے اس کو کشمیر سے تشبیہ دی، کشمیری قوم سے. تو اب اس کی جو بعد میں بطلیموس آئے، سکندر اعظم آئے، البیرونی آئے، یہ کس زمانے میں انہوں نے یہ لکھا ہے؟ یہ کوئی یہ 224 قبل مسیح کی باتیں ہیں. ہیروڈاٹس نے باقاعدہ یہ 3 الفاظ استعمال کیے. ان میں سے ہمیں ملی ہے یہ دردستان. اس نے درد کہا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ دریائے سندھ کے کنارے لوگ
लोमड़ियों की तरह उसको रेत को खरोचते हैं और उधर से वो सोना इकट्ठा करते हैं. वो बाकायदा साफ सुथरा लिखा है. ये जो बैग ओरिजिन में जा रहा, इसकी अब तहकीकात, इसकी तसल्ली करना, इसकी तशफ़ी करना अब हम सब का काम होगा कि भाई उसने कैस्प्रोस कश्मीरियों को कहा, पख्तिया खैबर पख्तूनख्वा को, पठानों को कहा, दर्द गिलगित बल्तिस्तानियों को कहा, लेकिन बाद में इसकी तफासील लेटनर ने बड़ा दर्दिस्तान उसी के नाम से दिया. और इसकी मिसाल थोड़ी सी हम इसको कम्प्लेक्स कर रहे हैं, जैसे कि अब बिलावरिस्तान है. व्हाट इज़ द बिलावरिस्तान? क्या है, कहाँ पे? लेकिन जो ब्लोर कौम है, ब्लोर संस्कृत वर्ड है, साफ सुथरे शल्दन बुरुशकी में कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्रिस्टल कहते हैं, उसको कहते हैं बिलावरिस्तान. तो एक जगह का नाम नहीं है, बल्कि बाज़ लोगों ने इसको बिलावरिस्तान बना दिया. ये जो केपी में ब्लोर फैमिली है, ये उससे मतलब मैं नहीं कहूँगा कि उनसे है या इनसे है, लेकिन ओरिजिन जो ब्लोर लफ्ज़ है वो वाइट क्रिस्टल को कहते हैं. तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं. इसके लिए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बहुत सारों को दावत दे रहा हूँ कि अज़रा इकराम आए, इन सब चीज़ों को हम बेसिक तरीके से इंटरप्रेट कर ले, बनिस्बत उसके कि हम एक दूसरे से प्रोमिनेंसी चाहें, जैसा कि नेगर वाले चाहेंगे कि हुंजा से हुंजा वाले चाहेंगे, कि गिलगित से गिलगित वाले चाहेंगे. चला, ये इस चीज़ से तहकीक बिल्कुल भी मुमकिन नहीं. सही. कल्चर के हवाले से थोड़ा सा हमारा ये गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं कि हमारा कल्चर क्या है, कब से है. सवाल इतने हैं कि मैं खुद परेशान हो जाता हूँ. मैं भी परेशान हूँ, आपसे ज़्यादा मैं परेशान हूँ, क्योंकि कल्चर वही तहजीबों से, जैसा कि मेसोपोटामिया हुआ, इजिप्शियन की तहजीब हो गई, इसी तरह तीसरे नंबर पे दुनिया में जो मानी जाती है वो आपकी है इंडस सिविलाइजेशन. ठीक है. इंडस सिविलाइजेशन पे अजीब किस्म के रिसर्चेस है. जब उनकी कुतुब, जैसा कि मैंस एलियस हिस्ट्री बाय रिचर्ड ओवी का आप बुक पढ़ लें, या इसी तरह जो 18वीं-19वीं सदी की जो यहाँ पे इन्वेडर्स आए हैं ईस्ट इंडिया के बाद जो आए हैं, उन सब चीज़ों को अगर हम परखें तो गिलगित बल्तिस्तान में जो सिविलाइज्ड कल्चर है वो मुझे किसी दुनिया के दूसरे कल्चर में नहीं मिलती है. लेकिन बदबख्ती हमारी ये है कि हमने वो अपना कल्चर छोड़ दिया है, दूसरे कल्चर को हम ज़्यादातर अडॉप्ट करने की कोशिश में हैं. ये थोड़ी सी नई नस्ल के लिए हमारा पैगाम है कि हमारे पास अभी कल्चरली जो इंसान पहले हंट गैदर, मतलब जो हंटर गैदर हुए, उनके बाद फिर गारों में आ गए, गारों के बाद जो ज़िंदगी यहाँ पे, जैसा कि मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, उसके बाद अब गिलगित बल्तिस्तान की. अभी भी मैं दावत देता हूँ जितने भी हिस्टोरियन पाकिस्तान लेवल पे हैं, इंटरनेशनली जो सुन रहे हैं, बिस्मिल्लाह आएँ. मैं आपको मेरे अपने ज़िले में ऐसा ऑक्टागोनल और हेक्सागोनल जो बॉक्सेस दिखाऊंगा जो आप हैरान हो जाएंगे. कितनी पुरानी, कौन सी सदी की? 3000-4000 साल. महकमे से भी मेरी गुजारिश होगी कि कोई इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मैंने 10 दफ़ा एप्लीकेशन दिया, किसी ने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी है. अब जैसे कि हमारे चिलास में है थल पंचतियाल वाले जो इंस्क्रिप्शंस रॉक्स हैं, दुनिया उन पे हैरान हो रही है, और हमें उसको हमें कोई उसके ऊपर हमारी कोई दहियाँ ही नहीं है. दूसरी बात, शब्बीर मीर साहब, छोटी मुँह बड़ी बात सर प्लीज, ये है कि 1954 में इश्कोमन इमित में एक रोड हो रहा था, वहाँ पे पेतल और सोने की मिक्स एक बुद्धा निकला. उस वक़्त पे अंग्रेज़ों की यहाँ पे बड़ी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस था. वो लेके गए हैं, इंटरनेशनली म्यूजियम में रखा है. अच्छा. उसका नाम भी चेंज किया है, उसका नाम रखा है इश्मोलियन. कई हजार गुने $1 बिलियन उसके कीमत लगा के रखी है कि अगर कोई खरीदना चाहे. सही. तो इंटरनेशनली हमारी रिक्वेस्ट होगी कि हमें अपना इश्मोलियन दे दें, हम पूरा IMF को खरीदेंगे. वो क्या चीज़ थी वो मतलब यही तहजीबों की, कल्चर की अक्कासी कर रहा था. यहाँ पे नन्स और मंक्स आ रहे थे, पूरी दुनिया के लिए एक सबक दे रहे. एक और चीज़ कि जो यहाँ की कदीम कुतुब के हैं, हम उनको जो संस्कृत में लिखी गई वो है मसूदात गिलगित बल्तिस्तान. सॉरी, मैं बल्तिस्तान को छोड़ नहीं सकता हूँ. वो इस वक्त इंडिया ने आधा कब्जा कर दिया है, आधा
कोई 625-26 पेजेस है, वो जो बिर्च जो बोझ पत्थर नहीं होता, इधर बड़ी सी दरख्त होती है, उसके बार्क पे लिखते हैं। उसके बार्क पे शब्बीर मीर साहब आप अंदाज़ा कर लो, उसके बार्क पे गिलगित के नपूर, चिलास और नगर, इन जगहों में आप यकीन करेंगे खोपड़ी को खोल के ऑपरेशन करने के फार्मूले वहाँ पे दिए गए हैं, 5-4 हज़ार साल पुरानी। अभी हम बड़े परेशान होते हैं कि किसी ने फेफड़ा चेंज किया, किसी ने गुर्दे का, अभी तक के खोपड़ी के ऑपरेशन यहाँ पे मुमकिन है या नहीं है ये मुझे अब, जबकि 3200 साल पहले गिलगित नपूर में, चिलास में, नगर में आपकी खोपड़ी की ऑपरेशन हो रही थी। अब मैं दावा इसलिए कर रहा हूँ कि मसूदात गिलगित देख लो आप, वो ये हमारे जो हंगरी के एक रिसर्चर आते थे 1913 में, वो पहले दाखिल हुए, क्योंकि मेरे एक प्रोफेसर का भी बड़ा मशहूर कौल है कि बेटा अंग्रेज़ों के साथ चलते हो तो इनको इज्जत करो पीर की तरह और इन पे निगरानी करो चोर की तरह। मैं इसी उसूल पे चलता हूँ। वो कम वक्त आए चोर की तरह। 1913 में ये चिलास से, नपूर से और दीगर इलाकों से इस मवाद को इकट्ठा करके अभी श्रीनगर में दिया है। दिल्ली में उनके ऊपर बड़ा वो बहारत वाले फख्र करते हैं, और आधा वो उधर हैं चावल के को गर्म करके या हर्बल प्लांट्स को इस्तेमाल करके कैसे हीलिंग करते थे वो। लेकिन अल्लाह के फजल करम से ये हुआ कि दरमियान में से बाज़ पेजेस ख़राब हो गए हैं, कुछ पेजेस पे उनको फार्मूले मिले हैं। That is the asset, that is the culture of the गिलगित बल्तिस्तान, जिस पर हम सबको पूरा फख्र है। ये मैन्युस्क्रिप्ट का मुख्तलिफ ममालिक में गिलगित बल्तिस्तान के हैं कहा जाता है, किधर होंगे, किस ममालिक में आना था? यहाँ से लेके गए, जहाँ से जो लेके गए हैं, बिल्कुल। लेकिन मुझे उस दोस्त पे भी फ़ख्र है, मासूद अता, इसको पढ़ने का वाहिद प्रोफेसर है दुनिया में जो PhD स्कॉलर है, लेकिन उसके पास, और मेरे बड़ा करीबी दोस्त है, अगर मैं एक पेज कहीं से मुझे मिलता है, मैं सेंड करूँ तो 6 महीने 9 महीने लगते हैं, वो पढ़ के सुना देता है कि भाई ये क्या चीज़ लिखी है। बाकी ये जो कहानियाँ हैं, मैं भी अपना एक आरा पेश कर सकता हूँ कि ये है, वो वाली चीज़ें नहीं हैं। इनके पास एक मखसूस ज़बान होती है, जैसा कि ये जो हमारे हॉली रॉक्स होते हैं जहाँ पे भी हैं, इन पे 3 किस्म के मतलब ब्राह्मी, खरोश्ती, नागरी, संस्कृत, ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। लेकिन किसी ने कहीं पे आइबेक्स दिखाया, आप देख रहे हैं, कहीं पे मारखोल लिखा है, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, एक निशाना, एक नुक्ता से वो मुकम्मल हिस्ट्री को पिक करते हैं कि ये इस सने में बनी थी और आजकल वो लेबॉर्ट्रीज बनी हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम परखें तो गिलगित बल्तिस्तान की यूनिक जो यहाँ की कल्चर है दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। सही। कल्चर की बात की सालेह साहब, जो अंग्रेज़ों के साथ जो वार था 1892 और 92 था या 82 था, एग्जैक्ट मेरे ज़हन में नहीं है, तो कल्चर कितना मजबूत था उस ज़माने में। एक मिसाल जो दी जाती है कि हाँ बिल्कुल, चिलास में उन्होंने अंग्रेज़ों के ऊपर हमला किया, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने इन्वेड किया था, तो क्या था वो, क्या ये बता रहा है कि कितने हम कल्चरली रिच थे, इंटीग्रेटेड इतने ज़्यादा थे, क्या था ये? शब्बीर मीर साहब, आपने एक बेहतरीन मौका मुझे दिया। मैं ख़ास कर हमारे यहाँ पे 2-3 मसलक के लोग रहते हैं, हमारे हुंज़ा बरादरी माशाल्लाह इंटरनेशनली बहुत अच्छे हद तक उनकी किताबें भी आईं, कल्चर को भी प्रिजर्व करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो 2 मसलक है, ख़ासकर शिया और अहले तशी और अहले सुन्नत बरादरी, और बल्कि मैं आगा राहत हुसैनी साहब और मोहतरम जनाब काजी निसार साहब से भी गुजारिश करूँ कि इस कल्चर को हमने दूर छोड़ दिया है, इसको कोई अजूबा चीज़ समझ के, ये बात नहीं है। इस कल्चर के थ्रू हम यकजान हो सकते हैं। आपने एक बेहतरीन सवाल उठाया कि ग्रेट गेम जो बुलशा इगरा कहते हैं, रेशंस, हमारे अंग्रेज़ इसको ग्रेट गेम कहते हैं, और ये बफरजून है गिलगित बल्तिस्तान। तो खैर इस गिलगित बल्तिस्तान को क्रॉस करके जो रोड बना के काशगर तक, ब्रिटिश और एमची में उनकी एम्बेसी थी, ब्रिटिशर्स वो मिलाना चाहते थे सेंट्रल एशिया से, वो लिंक करना चाहते थे। उसके बैकग्राउंड पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके बहुत सारे चीज़ें हैं। रेशा इन एशिया की वो एक्सेशन से वो डर रहे थे, दूसरा चाइना की हुकूमतें थी, इस किस्म के। तो खैर इनके ज़रिए एक यलगार किया ब्रिटिशर्स ने महाराजा के साथ मिलके कि भाई हमारे पास दुनिया की जदीद असलहा है,
मशीन गनें थे, उसी वक्त ही ब्रेन गनें थी, पता नहीं। फिर उन्होंने कहा चलो लुटा देते हैं इन सबको। तो खैर 1892 में आ गए, नेगरियों पे हमला किया। बल्कि असल में ये जंग नेगरियों के साथ नहीं थी, बेसिकली ये था हमारे हुंजर रियासत के साथ, क्योंकि वो सड़क बना रहे थे। तो मीर सफदर अली खान ने कहा कि नहीं, आप मेरे इलाके में एक्सेस इस तरह नहीं कर सकते। तो खैर वो भी उधर तैयार थे अपने रियासत में पहले, क्योंकि इनका आमना सामना नेगर का था, ब्रिटिशर्स और नेगर का था। नील के नाला अभी भी मौजूद है। तो इसमें भी नेगर में जो राजा मीर था जाफर जाहिद खान, वो इसका इनकारी था। वो कह रहा था कि भाई हमारे अंग्रेज़ों के साथ कोई जंग मंग हमारी क्या है, हमारी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर रहे। लेकिन उनके बेटे राजा अजूर खान बड़ा इंतहाई दिलेर और अपने इरादों का मजबूत इंसान था। उसने कहा नहीं, हम इसे जाने नहीं देंगे, चाहे हमारे हुंज़े के, क्योंकि उस अजूर खान का मीर हुंज़े के सफदर खान से भी रिश्ते थे। उसने कहा मैं हुंज़ा पे भी हमला नहीं करा दूंगा। मतलब वो फिर डट गए, कोई 702 फौज के साथ 28 दिन मुसलसल नील के नाले में फंस आके रख दिया। तो वो ब्रिटिशर्स भी हैरान हो गए। खैर इसमें हम नहीं जाएंगे। 100 को शहीद कर दिया, 127 बाद में कैदी हो गए नेगरी। उसके बाद आप देखेंगे कि ये 5 फरवरी तक तकरीबन अभी जनाजे थोल नील के मैदान में पड़े थे, उनको दफनाया भी नहीं था। तो एक हलचल पड़ गई पूरी गिलगित बल्तिस्तान में। तो आप यकीन करेंगे चिलास किले में चिलास के बाइयों ने कहा कि भाई हमारे नेगरियों पे क्यों हमला किया महाराजा और ब्रिटिशर्स ने, लिहाजा जज्बात में आए। उसी वक्त चिलास के किले में 5 मार्च 1892 को हमला करके मेजर डेनियल और कैप्टन मोबले को कत्ल कर दिया। ये थी हमारी कल्चर, ये थी हमारी सकाफत। क्या अभी कोई भी तकरीर, कोई भी स्पीच, कोई भी स्कूल, कोई भी यूनिवर्सिटी पढ़ाओ, क्या आप इस तरह जोड़ सकते हो? इसके लिए हमें सदियां लगेंगे अगर हम इस कल्चर को करीब करें। चिलास वालों ने कैप्टन मोबले और मेजर डेनियल को 5 मार्च 1892 में कत्ल कर दिया, बल्कि उनके साथ 6 और कोई गुरखा के बंदूक को भी चिलास किले के अंदर कत्ल, इसलिए कत्ल किया कि भाई आपने हमारे निगरियों को क्यों। सही साले साहब, ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर शायद हम घंटों में बात कर सकते हैं और समझना शायद मुश्किल हो। मैं ये चाहता हूँ मुख्तसर ये बताया, अभी आपने नील और थोल की बात की, उस ज़माने के किले आज कुछ पता नहीं है, कोई आसार भी हैं कि कहाँ पे थे, कुछ है किताबों में? तो उसके बल्कि आसार मतलब किताबों में मेरे पास माशाल्लाह से मैंने सारे मवाद इकट्ठा किया है कि उसकी खूबसूरत गालिबन वेयर 3 एम्पायर्स मीट उस किताब में वो, बल्कि बोलना चाहे कि वेयर 4 एम्पायर, क्योंकि अमेरिका भी अभी वो उसी वक्त से लगा हुआ था। लेकिन उससे भी बढ़ के निगर के किले हैं अभी माशाल्लाह। हमारे जो यंग जेनेटिक एनर्जेटिक के खासकर 10-5 सालों से मैं दरख्वास्तें लेके जगह जगह फिर रहा था, तो माशाल्लाह से हमारे मनोज साहब तो इस चीज़ को बड़ा तायद करके उसने म्यूज़ियम, निगर म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी सिंगराया अभी पाइपलाइन में, उधर ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्प्ले। नहीं, उधर कोई जगह अब भी कोई आइडेंटिफाई हो सकती है कि इधर नील वाला था, इधर थोल का? अभी थोल के वो मस्जिद भी है, वो थोड़ा हिस्सा अभी भी बाकी है, थोड़ा सा गिरा दिया है। वो जो स्टोपा था थोल का, उसको सड़क जो के जा रही थी उससे गिरा दिया है। अभी हमारे पास बल्कि उसमें एक कैरेक्टर है मैनर स्मिथ, जो उस जंग में हिस्सा लिया था। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैनर स्मिथ के नवासे को मैंने इनवाइट किया 2019 में। अच्छा। तो उसके पास पूरी फिल्म पड़ी है, उसने उधर जाके हमें दिखाया। लेकिन उस वक्त मैं, अब देखो ना, बींगे नगरी में उधर फंस गया। उसने कहा इस किले की दरवाज़ा कहाँ पे थे? तो हमने कहा आई एम सॉरी। उसने कहा दरवाज़ा इतने फुट का था, इधर था। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए कहा कि ये चीज़ें उनके पास प्रिजर्व बड़ी अपना सरमाया समझते हैं, और हमें इन चीज़ों पे कोई भैया ही नहीं है, ना कोई शौक रखता है। चलो उम्मीद रखें कि मनवा साहब नगर के हवाले से कम से कम ज़्यादा एफर्ट्स करके कोई ना कोई ऐसी चीज़ कम से कम बना देंगे कि जो बाकियात हैं, रिमेन्स कम से कम जमा कर सकें। और दूसरा ये है कि इंटरनेशनली जितने भी हैं, आप अल्लाह के फजल करम से पढ़े हैं, खंडरात है जैसा शंगली खंड है, मेरे पास बरपू है, हामदर है, वहाँ पे सारे यही जो इजिप्शियन में हैं, जो आपका मांजोडारो और हड़प्पा में है, वो निशानात सारे पड़े हैं। मुझसे बेहतर आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी एक और चीज़ शब्बीर मिर्ज़ा की आपकी बड़ी
ख्वाहिश थी, कल कोई 3-4 दफ़ा आपके प्रोग्राम भी देखा कि अब गिलगित बल्तिस्तान में मैं खुल के कहूँ ये बंजर ज़मीनें बड़ी अजाब बड़ी है अभी, क्योंकि बाउंड्रीज, इन पे लड़ाइयाँ, इन पे एक दूसरे के ऊपर मतलब ये चीज़ें हो रही हैं। आपका माशाल्लाह से वो प्रोग्राम भी मैं देख रहा था डॉक्टर इनायत साहब की, और वो शंदूर के हवाले से, जी 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 जी, इनायत वली है उधर के उनकी वो। लेकिन शब्बीर मीर साहब, मैं आपकी विसातत से, इस प्रोग्राम की विसातत से मैं ये कहूँ कि डॉक्टर इनायत साहब ने एक चीज़ का इजहार नहीं किया। वो सारे इतने छोटे मोटे कागजात की बात की, लेकिन अब उस ज़माने में इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक लोग थे। वो आजकल पिस्तौल इस्तेमाल होते, उस वक़्त खंजर, बड़े जज्बाती लोग थे एक दूसरे की रियासतों को काबिज करने के लिए। तो उस वक़्त अंग्रेज़ों ने बाउंड्री लाइंस दी हैं, जैसे कि ड्यूरेंट ने वो अफगानिस्तान पाकिस्तान का अभी तक मानते हैं। तो गिलगित गेजेटर 1909 और 1927 का मुतालिया करो, दूध का दूध पानी का पानी होगा। गिलगित गेजेट 1909 और 1900, बल्कि इधर बिडल हाउस में होगी भी। 2-3 लकीरों में ही वो सारी चीज़ें हैं। गिलगित की बाउंड्री कहाँ तक थी, और उससे भी इधर जो गोरा कब्रिस्तान में हेवर्ड वहाँ पे दफन है, वो दरकुत में कत्ल हुआ। ठीक है, अब वो दरकुत में दफन हुआ, कत्ल हुआ, तो इधर लाके इसको दफना दिया। उसकी माँ ने जाके रुडयार्ड किपलिंग और न्यू ब्लड, जो एक दुनिया का बड़ा मशहूर शायर था उस ज़माने का, उससे नज़म लिखाई है, लासपुर की पहाड़ियाँ कहाँ पे। उस नज़म से ही आपको बाउंड्रियाँ मिलती हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सालेह साहब, इतना इंटरेस्टिंग ये सेशन है। मुझे तो लगता है कि वो जो हदूद व क़यूद टाइम की होते हैं उनसे हम शायद बहुत आगे जाएं। तो किसी और नशिस्त में दोबारा हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें नहीं हो सकी, उसमें हम उसके ऊपर बात करेंगे दोबारा। तो आपको दोबारा हम ज़हमत देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। फीडबैक ज़रूर दीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।